Namaskar and welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. And to discuss the stories, we are joined in the studio by business analyst Jayanta Das. जी जयंता, कार्यक्रम में आपका स्वागत। शुक्रिया सर। और मार्केट मंत्र के सभी श्रोताओं का स्वागत एक बार फिर। प्रतिदिन की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा नेजा डेंग। थैंक यू विशाल। Well, RBI hikes repo rate by 50 basis points to 4.9%. Government increases MSP for Kharif crops. Domestic stock indices decline 0.4% and Sensex closes below the 55,000 mark. Nifty settles below 16,350 level. भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि की। रेपो रेट बढ़कर 4.9% पर पहुंची। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की। घरेलू शेयर सूचकांकों में 0.4% की गिरावट और सेंसेक्स 55,000 के निशान से नीचे हुआ बंद। निफ्टी भी फिसलकर 16,350 के स्तर से नीचे आया। The Sensex and the Nifty today fell around 0.4% amid mixed global cues. The Sensex at the Bombay Stock Exchange closed below the 55,000 mark, while Nifty at the National Stock Exchange settled near 16,350 level. The Sensex lost 215 points or 0.39% to close at 54,892, while the Nifty declined 60 points or 0.37% to finish at 16,356. In the broader market at the BSE, the mid-cap fell 0.15% and the small-cap index ended 0.33% down. In the Sensex pack, 12 companies logged gains while 18 declined. In sectoral indices at the BSE, 5 sectors rose while 14 logged losses. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,513 companies gained while 1,799 fell. Shares of 121 companies remained unchanged. The Reserve Bank of India, RBI, today increased the repo rate by 50 basis points BPS. RBI Governor Shaktikanta Das said the Monetary Policy Committee voted unanimously to hike the benchmark interest rate by 50 BPS to 4.90% with immediate effect. RBI Governor said the standing deposit facility and marginal standing facility rates also raised by 50 basis points. Standing deposit facility rate is now 4.65%, while marginal standing facility rate is at 5.15%. Earlier in May, RBI had increased repo rate by 40 basis points at an off-cycle meeting of the Monetary Policy Committee. The RBI left GDP growth forecast unchanged at 7.2% in the financial year 2022-23. On the other hand, the RBI revised inflation projection for current fiscal to 6.7% from 5.7% earlier. Stating on inflation, Mr. Das said, inflation likely to remain above 6% in the first 3 quarters of current fiscal. Inflation projection for April-June has been revised to 7.5% from 6.3%. For July-September, it has been revised to 7.4% from 5.8%. Mr. Das said steps will be calibrated and focused on bringing down inflation to target level. The RBI governor said that the Russia-Ukraine war has led to globalization of inflation. He said that the inflation has steeply increased much beyond the tolerance level. Process of recovery in emerging market economies is also getting affected, but the Indian economy has remained resilient. जी जयंता, रिजर्व बैंक ने जो आज मौद्रिक नीति की घोषणा की है और 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है रेपो दर में, आपके नजरिए से क्या लगता है आपको कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच में एक बैलेंस बनाने की फिर से कोशिश करता दिख रहा है रिजर्व बैंक? देखिए, मैं मानता हूं बिल्कुल फोकस इस वक्त मुद्रास्फीति के ऊपर काबू पाने के लिए है आरबीआई का, और आज का जो भी घोषणा था इज वाज एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशंस। हम लोग जब पहले दफा में जब इंक्रीज का भारत में ऐलान कर दिया था उसी वक्त हम लोग बोले थे 50 बेसिस पॉइंट का बढ़ोतरी होना है, और सिर्फ
ये नहीं उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले 5-6 महीने के अंदर करीबन अनदर 60 to 70 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज यहां से हो सकता है आगे। अब जैसे आरबीआई गवर्नर ने आज कहा कि ओवरऑल पूरा दुनिया में रशिया यूक्रेन वॉर का वजह से सप्लाई साइड कॉन्स्टेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है और साथ में ओवरऑल कमोडिटी प्राइसिंग बोलिए या इनपुट का प्राइसिंग बोलिए इतना तेजी से वृद्धि हुआ है कि हर राष्ट्रीय नेशनलाइज बैंक का है या हर सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी बैंक्स होता है वर्ल्ड वाइड वो सारे कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से अपना मुद्रास्फीति को काबू पाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का द्वारा रब करके कहीं न कहीं से मुद्रास्फीति को ब्याज दर का वृद्धि का साथ साथ काबू पाया जाए। इंडिया इज नो डिफरेंट। तो अच्छी बात यह है कि इंडिया में कोशिश अभी भी खास करके तेल का कीमतों में इतना करीबन $120 से भी ज्यादा आज भी हो गया। तो ऐसी स्थिति में रशिया से अलग से तेल मंगवा के वहां पे बास्केट ऑफ ऑयल प्राइसेस में कम्पीट करने का कोशिश किया रहा है। सरकार ने भी कुछ छूट दिया है एक्साइज ड्यूटी में करके तेल का दर कम हो, लेकिन उसका बावजूद भी मार्केट में जिस तरह से तेजी चल रहा है मुद्रास्फीतियों का कोई भी बैंक जो मॉनेटरी पॉलिसी गवर्न करता है वो कोशिश क्या उनका पूरा उम्मीद ऑब्जेक्टिव ये रहेगा इस वक्त कि इसमें काबू पाए और जिस वजह से आज ये 50 बेसिस पॉइंट का वृद्धि हम देख रहे हैं। Ajanta, as you said that inflation is now a global phenomenon, and the World Bank, as much as the RBI, has also lowered the GDP growth rate to somewhere around 7%. But you said India is no different, but also is the fact, as we just read in the report, that India is resilient. Indian markets are resilient. What do you think are the factors that make the Indian markets resilient? Is it the fact that we are a consumer-based economy, or is it that we are prone to savings? We always have that idea of household savings. Lalima, there is a fine difference between resilience and insulation. So we are certainly not an insulated market because we are part of the global village, as we call it in terms. Our resilience has been mainly on three main areas. The first has been a robust, more or less macroeconomic factor which has been persisting for long. For almost 10 to 12 years in terms of how macroeconomic performance has been happening. Secondly, we are also at this point of time in a growth phase. So we are talking of around 7% growth levels, which as per current dynamics we believe is much lower than what we expected. So I don't believe too many countries anywhere in the world of the size of, say, India's GDP, or even if you compare the top 20 countries are growing at these levels. So India is one of the fastest growing economies in that sense, and that helps to cushion off a lot of this pain. And the third point is the government has been extremely proactive in bringing in policy measures at not only just monetary levels but also at fiscal levels. We have seen how the government spending has been done during COVID times and post-COVID times to ensure the rate of growth comes back to what it was in real terms in the pre-COVID era. So those factors has to a great extent cushioned the pain. But as I said, it's not an insulated economy. So obviously you can't get rid of the pain. The only thing is the pain has to be eased out in such a manner so that the economy is able to take such shocks into it. Having said so, as I said, the rate increase, the repo rate increase which has happened today would obviously create some further pain in industries which are directly depending on lending, like your infrastructure, your four-wheeler, two-wheeler vehicle segments, like banking, realty, to some extent, realty, a great extent. But at the end of the day, what also seems to be an important factor is there has been no tinkering done in the CRR. So the banks had if not a formal request, had an important thought where they thought that at least RBI should not tinker with the CRR. That would suck out a considerable amount of liquidity in the market. So that has not been done. What has been done is obviously money will be expensive, but there will be money available on the shelf. So that's what RBI has been focusing on this for. It's always been a tightrope walk. Yeah, obviously. जी, और भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर को लेकर जो आज जो घोषणाएं हुई हैं उस पर और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ इस समय ऑनलाइन आर्थिक विशेषज्ञ जुड़े हैं शिवाजी सरकार जी, कार्यक्रम मार्केट मंच में आपका स्वागत। धन्यवाद जी। शिवाजी सरकार जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज जो आरबीआई ने जो रेपो रेट में वृद्धि की है, जो दरें बढ़ाई हैं, ऐसा ये माना जाता है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी जो है वो कहें तो कॉस्ट ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस को भी बढ़ाती है।
जो कि ऑलरेडी पहले से ही काफी ऊंची चल रही है। हाई रॉ मटेरियल है, कच्चे माल की जो लागत है वो बढ़ गई है, और जो जिस तरीके जियोपॉलिटिकल कंसर्न या डिस्ट्रेस चल रहा है उसको देखते हुए इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या इसका डूइंग ऑफ बिजनेस की कॉस्ट भी बढ़ने वाली है इससे? नहीं, इसमें एक छोटी सी चीज इसकी एक दूसरा पहलू भी है। पहले उससे बात कर लूं, फिर इसको पे आता हूं। देखिए, इसकी एक दूसरा पहलू भी है। अभी तक ये डिपॉजिटर्स हैं, और खास करके जो सीनियर सिटीजन और महिलाएं और इस तरह के जो लोग रहे हैं, उनके साथ ये उनकी एक तकलीफ थी कि इंटरेस्ट रेट कम होने से उनको तकलीफ बहुत हो रही थी जी। तब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने से एक जो है बहुत बड़े तबके को खुशी भी मिलेगी, तो हमें उस तरह से भी देखना चाहिए। और वो तबका है जो बाजार में कंज्यूमर के जो लेवल है, जो खरीदारी जो करता है, वो लेवल है। तो उनके खुशी बढ़ने से, आपने जो बिजनेस की बात की, हाँ, बिजनेस का कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ेगा। देखिए, बिजनेस का कॉस्ट तभी बढ़ेगा जब भी वो लोन लेंगे किसी भी चीज के लिए, चाहे हाईवे प्रोजेक्ट हो, चाहे बिल्डिंग प्रोजेक्ट हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, किसी उसमें अगर वो क्रेडिट पे जाएंगे तो डेफिनेटली उनका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं बढ़ता ही है और बढ़ जाएगा। पर वो बढ़ने के साथ साथ जो एक चीज जो है, दूसरी एस्पेक्ट जो है कि अगर उनका कॉस्ट बढ़ता है, प्रोडक्शन जो है वो अगर नहीं बढ़ता है तो उनके लिए परेशानी है। पर अगर वो बढ़ता है और ये जो जिनको कुछ लाभ होगा वो अगर बाजार में आके उनके सामान खरीदते हैं तो जो उनकी जो बिक्री है वो बढ़ेगी। तो ये जो है एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अगर हम देखें तो इस पूरे मौद्रिक नीति का जो एक एस्पेक्ट है उसको हमें देखना पड़ेगा इस उससे। दूसरी चीज, एक चीज और है, आरबीआई ने आज के जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें उन्होंने एक जो और इससे भी ईज ऑफ बिजनेस के साथ साथ उन्होंने एक जो शंका जाहिर की है कि अगर यही हाल रहा, क्योंकि उनका कहना है कि साल की आखिर तक जो है ये इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ता ही जाएगा। अभी भी 7.8% है, उनके हिसाब से जो साल के आखिर तक वो 7% के आसपास तक जो है आरबीआई के हिसाब से जो है वो इन्फ्लेशन जा सकता है। तो आरबीआई को जो है मुझे लगता है अभी ये जो रेट्स अभी रिवाइज किए हैं ये आगे भी अभी रिवाइज करते रहना पड़ेगा, और शायद अगस्त तक जो है, क्योंकि अभी भी अगर उनके जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसके हिसाब से वो कहीं ना कहीं -1% के इतने उससे चल रहे हैं अभी। तो All right. Thank you, Mr. Shivaji Sarkar, for that update. जी, जयंता, यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो होम लोन की दरें जाहिर सी बात है कि अब बढ़ेंगी, और रियल एस्टेट सेक्टर पर इस आरबीआई के इस फैसले का आप क्या असर देखते हैं, खासतौर पे अफोर्डिंग हाउसिंग की जब हम बात करते हैं? देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग में थिन मार्जिन्स का साथ साथ सरकार का भी एक प्रयास रहा है। जो लोग एकदम मार्जिनल लेवल में, उन लोगों को किस तरह से प्रॉपर तरीके से घर दिलवा के 12 लाख से लेके करीबन 24-25 लाख का नीचे अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर आते हैं दिया जाए। तो ऑब्वियसली जो भी कंपनी इसमें है मौजूद और उनका जो भी हिसाब में कहीं ना कहीं बैलेंसिंग में गड़बड़ तो बेशक होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक करीबन हम लोग 100 बेसिस पॉइंट इंक्रीज का बात कर रहे हैं रातों रात, तो उसमें बेशक मतलब कोई दो राय नहीं है इसमें कि उनका कॉस्टिंग, उनका अफोर्डेबल हाउसिंग का जो इस वक्त जो मौजूद जो एग्जीक्यूशन हो रहा है इसमें सवाल आएंगे। और एक और चीज हम विशाल जो मतलब भूल रहे हैं वो ये है कि मुद्रास्फीति की वजह से स्टील, सीमेंट, जी, लेबर, इनका जो दरें बढ़े हैं ये भी शायद कहीं ना कहीं जाके एक अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर प्रेशर डालेगा कि मार्जिन्स क्या रहे। तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ओवरऑल। लेकिन हमारा आज का तारीख में जो श्रोताओं है, मैं मानता हूं करीबन 90% श्रोताओं होम लोन्स में कहीं ना कहीं फंसे हुए, लेकिन उनका जो असर आएगा मार्केट में, मोटे मोटे हिसाब से अगर 1% इंक्रीज होता है तो आपको अराउंड ओवरऑल 2000 रुपये के करीब आपको ब्याज दर में फर्क आ ही जाता है कहीं ना कहीं पर लाख के हिसाब से। अगर आप करें तो 1800 से 2000 पर लाख के हिसाब से, तो उसमें करीबन 400 से 600 रुपये का फर्क आ जाता है। तो वो हिसाब अगर लेके चले तो मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ा धक्का होने वाला है। और जैसे मैंने कहा कि साथ के साथ कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जो कंप्लीटली रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्रिवन होते हैं, वी आर फॉरगेटिंग, वी आर नॉट इवन डिस्कसिंग प्रोडक्शन साइड। खास करके कंज्यूमर साइड में ऑब्वियसली आपका जो खाता है खर्चा का, उसमें वृद्धि होगा, और इनकम का खाता अगर समान रहेंगे तो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सेविंग्स में जाके वो गिरेगा। एक दूसरा बात, थोड़ा बहुत मैं अभी आपका पहले जो गेस्ट आए थे जी, उन्होंने एक अच्छा पॉइंट बताया इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, लेकिन मैं मानता हूं गणित में उस पर थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए है क्योंकि जो स्पेंडिंग है
वो स्पेंडिंग हमारा इनकम क्लास करते जो रोजगार करते हैं, और खास करके 25 साल से लेकर 40-45 साल तक उम्र का, इनको ऊपर कुछ भी आप पॉलिसी लागू करें, उसका लागू के हिसाब से, पॉलिसी आने के हिसाब से उनका जो खर्चा वृद्धि होता है या कम होता है, उसका असर इकोनॉमी को बहुत ज्यादा आता है। जो हमारा माता पिता या हमसे जो बड़े भाई जो भी है आज का तारीख में, जो 60 साल के ऊपर है और जो उम्मीद करते हैं कि एक ब्याज दर के ऊपर अलग से उनका बैंक में जो पूंजी जमा है उसमें एक अलग से कुछ फायदा हो, वो उस तरह से कंज्यूमर क्लास में नहीं आते इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग। तो बेशक उनका थोड़ा बहुत इनकम में फर्क पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दैट विल नॉट बी इनफ टू शील्ड द लॉसेज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, क्योंकि कंज्यूमर स्पेंडिंग का ये जो ह्यूज वर्किंग क्लास है, नॉट ओनली वर्किंग क्लास, जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है, कहीं पे भी देखें, जो 24 साल से लेके 40, 45, 50 साल उम्र तक जो लोग खास करके स्पेंड करते हैं, उनका जो खर्चे में जो चोट पहुंचेगा वो ज्यादा मजबूती में आने की वजह से ओवरऑल कंजम्पशन डिमांड में थोड़ा बहुत गिरावट आएगा, जिस वजह से आरबीआई ये नीति अपनाया। रिजर्व बैंक ने, जयंत जी जानना चाहेंगे कि रिजर्व बैंक ने रेपो दर में तो वृद्धि की है, लेकिन सीआरआर में कोई वृद्धि नहीं की है। बैंकिंग सेक्टर के लिए कितने मायने रखती है? बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर लिक्विडिटी में फिर से क्रंच आ जाता है तो ये ब्याज दर अगर 100 बेसिस पॉइंट रेपो रेट में वृद्धि हुआ है तो बैंक्स को मजबूरन जाके 150 शायद 250 पॉइंट 175 पॉइंट तक इंक्रीज करना पड़ता है, बिकॉज मार्केट में अगर अचानक लिक्विडिटी कमी हो जाता है तो। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये एक बहुत अच्छा निर्णय रहा जहां पे सीआरआर में कोई टिंकरिंग नहीं हुए, और जिस वजह से मार्केट में एटलीस्ट लिक्विडिटी लेके, हाँ ये जरूर है कि पैसा जो पड़ा हुआ है वो महंगा हो गया, लेकिन ऐसा स्थिति नहीं है कि महंगाई के साथ साथ चीज का भी कमी हो गया उपलब्ध, तो मार्केट में इनफ लिक्विडिटी है to give to the industry or to whoever is able to afford at these sorts of rates। बट जैसे मैंने कहा कि अगले 6 महीने में, विशाल अगर आप एक और चीज देखें कि अगर हम सब मुद्रास्फीति वृद्धि होने की बात कर रहे हैं अगले 6 महीने में, अगले 6 महीने में करीबन 70-80 बेसिस पॉइंट और रेपो रेट की बात कर रहे हैं, तो शायद कुछ कुछ इंडस्ट्री जो ऑलरेडी अपना प्रोडक्शन में लगे हुए, एक्सपेंशन में लगे हुए या अपना प्लानिंग लगे, वो अगर फास्ट ट्रैक करते हैं अपना प्रोसेस, अपना खर्चा, अपना इनकम अगर पॉसिबल होता है, ऐसा नहीं कि सब फास्ट ट्रैक कर सकते हैं, तो उसमें क्या है कि आपका लोन बैलेंसिंग कॉस्ट काफी कम हो सकता है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण देने की मौजूदा सीमा को बढ़ा दिया है। एक वक्तव्य में रिजर्व बैंक ने कहा है कि प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए ऋण सीमा को टियर 1 शहरों के लिए 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख रुपए और टियर 2 शहरों के लिए 70 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ 40 लाख रुपए कर दिया गया है। 1 अरब रुपए से कम की कुल परिसंपत्ति वाले ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए यह सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है, जबकि शेष ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए यह सीमा 30 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि आवास की कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है, क्योंकि 2011 में शहरी सहकारी बैंकों और 2009 में ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए ऋण प्रदान करने की सीमा अंतिम बार संशोधित की गई थी। What do you think of this change, Jayant? Well, obviously, see, as I said, it brings back to the question which you asked us initially about the resilience part of the Indian economy. I think these are the measures which makes India much more resilient, because what happens over here is we have a banking system, specifically in the Grameen level or even in the commercial, cooperative level banking and all, who has money and who has clients in the other end, but they can't give a loan because of that particular ceiling. Now, if house prices have increased, so I don't see any reason why your ceiling limit should not be increased, Yes, right. And as I said, that's and if you look at the decision which has been made, the last increase was done almost 10 years ago, 10 to 12 years ago. So it's obviously a very important. So it's nice to get more and more people under and the markets are opening up. The banks are much more freer to use their money, and the banks are much more able to, the more money they lend, the more income happens. So that's also a very important positive impact which we see. छोटे शहरों में प्रॉपर्टी की मांग बढ़ेगी, बिल्कुल आवासीय खासतौर पर आवासीय प्रॉपर्टी। The Reserve Bank of India has proposed to allow linking of credit cards to the Unified Payments Interface. RBI said the facility would initially be enabled for RuPay credit cards, that too after the required system development is complete. It has informed that UPI is the most inclusive mode of payment in India, with over 26 crore unique users and 5 crore merchants on board the platform. It added that 594 crore 63 lakh transactions amounting to 10.40 lakh crore rupees were processed through UPI in the month of May 2022 alone. The Apex Bank
hopes that the linking of credit cards with UPI will provide more avenues and convenience to the customers in making payments. You agree with the last line, Jayanta? The Apex Bank hopes that credit cards with UPI, the linking will give more avenues, will provide more avenues to the customer. See, when it was launched, there was a lot of apprehension about whether we'll be able to beat the Visa and MasterCard network. And I think they have done a phenomenally good job in terms of how the payments have happened. And in fact, let me share a very small story in 30 seconds. While I was coming in, your driver from All India Radio on the phone in a signal when he was waiting was promising someone a UPI transfer of 60 rupees. So, and that money was wanted to give him back over the last 2 weeks. It didn't happen. So, to that level, the integration has happened. The reason why I said this is the level of integration and this is the volume of transactions which are happening, and that's a huge phenomenal leap in terms of banking and financial services. And let me tell you, even the developed nations don't have these sorts of fast transactions which we are experiencing in India at almost zero cost. Right. So digital India at its very best. And still growing. Absolutely. और अब खबर कैबिनेट के फैसले से जुड़ी हुई। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज खरीफ फसल सीजन 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि स्वीकृत दरें उत्पादन के अखिल भारतीय औसत लागत से कम 1.5 गुना बढ़ाई गई हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष तिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 523 रुपए, मूंग का 480 रुपए और सूरजमुखी के बीज का मूल्य 385 रुपए, तूर, उड़द और मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 300 रुपए, मध्यम रेशे की कपास 354 रुपए और लंबे रेशे की कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। और अब रुक करते हैं, रुपए के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में आज डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 77 रुपए 74 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। बात करें एशियाई शेयर बाजारों की। एशियाई शेयर बाजारों में आज कारोबार मिला जुला रहा। हांगकांग के हैंगसेंग सूचकांक में 2.2% का उछाल आया। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.7% और जापान का निकेई 0.1% की बढ़त में रहे। वहीं दूसरी ओर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% के नुकसान में रहा, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजारों की बात करें तो यूरोपीय शेयर बाजारों में अंतर्दिवसीय कारोबार में गिरावट रही। लंदन का FTSE 100 0.5% की गिरावट में रहा। फ्रांस का कैक 0.9% और जर्मनी का डेक्स 0.6% की गिरावट दिखा रहे थे। A look at the U.S. markets. Well, the U.S. stocks today rallied yesterday to end higher for a second straight day as technology and energy shares gained. The Dow Jones Industrial Average Index added 0.8%, Nasdaq Composite Index rose 0.9%, and the S&P 500 gained 1%. जी, वापस अगर हम जनता घरेलू शेयर बाजारों की बात करें तो वॉलेटिलिटी बनी हुई है और उतार चढ़ाव ये देख ही रहे हैं हम कि सेंसेक्स की शुरुआत जो है, सवेरे जो कारोबार की शुरुआत होती है तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे आकर के बढ़त गंवा देता है बाजार। ये जो इस समय शेयर बाजार में स्थिति चल रही है, उसमें एक आम निवेशक के लिए आप क्या बात कहना चाहेंगे कि वो निवेश के लिए जाए? बिल्कुल इस वक्त मैं मानता हूं कि वैल्यू बेस्ड स्टॉक्स में बेशक अब ये जरूर है कि जो स्टॉक आप 100 रुपए में देखे थे पिछले साल, वो स्टॉक आज का तारीख में शायद आपको 150 में मिल रहा है और आपको लगेगा शायद इसमें वैल्यू नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन उस तरह से नहीं होता है। आप देखिए इस वक्त मौजूदा हालत में कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए और उस हिसाब से P/E रेशियो देखिए और साथ में जिस सेक्टर में आप निवेश करना चाह रहे हैं वो सेक्टर आपके लिए प्रिय है कि नहीं देखिए, या सेक्टर समझ रहे कि नहीं आप देखिए। तो ये तीन चीज का साथ साथ आप अलाइन करिए। आपका इस समय अगर आप 150 रुपए कोई भी स्टॉक में लगा रहे हैं, आप उसमें अगले 3 साल में उसमें क्या उम्मीद करते हैं, ये देखते हुए कि ब्याज दर में वृद्धि होने वाला है, ये देखते हुए कि एक प्रेशर आने वाला है जीडीपी ग्रोथ में, ये देखते हुए कि अलग अलग जो स्थिति बना हुआ है वो सब घटना भी होने वाला है। तो ये सब मौजूदा स्थिति देखते हुए आप आराम से 12 से 14% रिटर्न का अगर उम्मीद करते हैं, मैं मानता हूं बहुत अच्छा उम्मीद है वो, और रिटर्न आपको बेशक अच्छा रहेगा 12 से 14% का रिटर्न। उस तरह से हिसाब करके आप बेशक इस बाजार में भी अच्छा स्टॉक्स आप देख सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में आपके नजरिए से कौन से ऐसे आकर्षक सेक्टर हैं जहां पर कि निवेश के लिए के बारे में देखिए आईटी हो गया, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, ये काफी अच्छा इस वक्त मैं मानता हूं। और साथ में मार्केट में थोड़ा सॉफ्टनिंग होगा बैंकिंग वगैरह का। बैंकिंग मेरा अपना निजी प्रिय क्षेत्र है
हालांकि बहुत अच्छा शायद इस वक्त परफॉर्मेंस अगले 3-6 महीने 9 महीने के अंदर अब उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन लंबे दौर अगर आप देखें 2 साल से ज्यादा या 3 साल से ज्यादा आप देखें, काफी अच्छा क्षेत्र है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए. Janta, there has been a flight of foreign portfolio investors, but we also see on the other hand that the retail investors have increased a lot to about 26 lakh in financial year 22. Are the retail investors acting like a shock absorbers in the stock market? Yes, that's what the FM also, I guess, highlighted somewhere. I don't remember where I read it. Yes. But I do believe in any market, Lalima, which is a developed market, it's very important to have a dominant, retail sector coming in, if not a predominant retail sector. The reason being is obviously the size of the retail sector cannot be, overtaken. I mean, the retail sector size cannot be overtaken by the FPIs overnight. But what's important to understand is they hold the important crux and core of how the market sentiments are locally, because that's what the retail centers are coming from. FPIs have a global platform to operate on, and obviously, they are coming in and going out will be really fast and quick depending on how the geopolitical situation or how the overall markets change and all. So, the retail sector is here to stay in terms of their investment confidence, because they are much more aware of what is happening domestically, and the growing of the retail market, as I said, in any market world over, is a very critical component which speaks of the depth of a stock market in that particular country. And I believe a fair indicator of how the retail market has come in and the retail market has grown speaks of how, the stock markets at depth have grown in India to say from the 1990 days till now. So we are getting strong. So we are obviously, fine. Yes. And I look at the oil. Oil prices today climbed more than 1%, anticipating a report of low U.S. oil stocks, while expectations of solid demand in the upcoming driving season also lend support. In intraday trade, Brent crude was trading at around $121.90 per barrel, while WTI crude prices were at $120.80 per barrel. Talking about seems like a bottomless pit at the moment, the Russia-Ukraine war. It's just going on and on. Yeah, so it's someone else's war and the world is paying a price. There's definitely no doubt on that. But yes, the oil prices are obviously, it's a free zone for anyone to predict, and it's a wild prediction for anyone to say where to go from here, if that's the next question you want to ask me. But I do believe the uncertainty would prevail till we have an ending to the war, or at least a direction to where the war is heading. I don't think it's ending very soon, or nor there is any winning side out there at this point of time. जी, बात करते हैं गोल्ड की. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना आज 45 रुपए की गिरावट से 50,925 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा. जुलाई अनुबंध वाली चांदी भी 605 रुपए टूटकर 61,640 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी. न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना गिरावट के साथ $1,853.10 प्रति औंस पर था. चांदी भी मंदी के साथ $22 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी. जयंता, आपसे जानना चाहेंगे कि इन्फ्लेशन महंगाई जब बढ़ती है तो सोने की कीमतें भी बढ़ती हैं, लेकिन पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सोने की कीमतें उस स्तर पर, उस हिसाब से या उस तुलना में नहीं बढ़ पा रही. 51,000 50,000 के एक सीमित दायरे में ही सोना बना हुआ है. क्या कहेंगे? मैं मानता हूं कि अगर पिछले 20 साल के दौरान आप देखें, इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज काफी सारे बढ़ गए, सिर्फ मेटल में सीमित नहीं रहा. हालांकि अभी भी मेटल एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, लेकिन अदर कमोडिटीज में भी लोग जाके निवेश करते हैं, ऑयल फ्यूचर्स में जाके निवेश कर रहे हैं. और ये एक वजह है शायद रातों रात क्रिप्टो करेंसीज आ गए जो 5 साल पहले नहीं थे. तो ये शायद एक वजह मेन है जहां पे आप अलग से सोने का ऊपर जो हम देखते हैं कि रन अवे प्राइस राइज होता है, वो इस वक्त जो उम्मीद कर रहे थे लोग थोड़ा बहुत रहेगा. लेकिन फिर भी अगले 3 साल में मैं अभी भी मानता हूं सोने का रिटर्न्स काफी अच्छे रहेंगे जो सोने में निवेश करना चाहता है, अगर 3 साल का अवधि लेके चले इस दर में. As I say, you always diversify your portfolio. Obviously, so this can be one of the. It also acts as a hedge against inflation. More than hedge, as I said, gold will still give you a more than average returns if you have a 3-year level, even at this 51,000. Right. जी, जयंता दास, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी बहुमूल्य चर्चा की, उपयोगी जानकारी दी हमारे श्रोताओं के लिए. आपका धन्यवाद. And before we close, friends, here's a reminder of the headlines. RBI hikes repo rate by 50 basis points to 4.9%. Government increases MSP for Kharif crops. Domestic stock indices decline 0.4%. Sensex closes below the 55,000 mark. Nifty settles below 16,350 level. That's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is Lalima Aneja Dang and Vishal Sharma signing off. Namaskar. Market Mantra.